Good evening, everyone. A very warm welcome to Get Set Go Beyond Sports with me, Sonali Gupta. I am extremely excited to bring one more episode of Magika Asteria Warriors. Magika Asteria actually is a Greek word. Magika means magic, and Asteria means stars, and which is where two of these words come together with the athletes who are with us, with the players who are with us, the sports people who are with us. They are no less than magic stars, and which is why we have a series called Magika Asteria Warriors. Warriors because we have women with us today who are warriors within themselves. They have fought just not for themselves, but fought for the sport that they wanted to play, fought to make a name for themselves. And it is my honor to be with them. I am going to introduce our first guest to you, Neelu Mishra. Neelu Mishra ji hails from Varanasi in Uttar Pradesh. She has won more than 50 national medals and 28 international medals. She's a fighter through and through. She has fought with her medical condition of a malfunctioned kidney since childhood, lost weight, and re entered sports when people would not even encourage her to try. But she did try, succeeded, and proved herself through her hard work and medals, for which she was also awarded the Rani Lakshmi Bai Bravery Award from the government of UP, honoring her achievements. She has been a very proud Indian flag bearer at the opening ceremony of Penang Asia Pacific Masters Games in 2018. Neeluji is also an active worker for the development of sports and women through her various associations and roles. Next guest today with us is someone who comes from a rather comfortable background in Mumbai. Lavinia Hansraj has defied that modern urban women don't get dirty on track and fields. She has reconnected with sports much later in her life. After having lived a fairly modern life, she has wanted more for herself when she decided to pursue running. There can be so many excuses, like, does Mumbai even have that much space to train? How will I get time? Or when will I get time? But she's answered all of these questions with her 5 gold medals in National Masters Athletic Champions held in Nasik and the recent Masters Athletic Champions in Sri Lanka. Lavinia has competed in over 40 women's plus category and won her medals in all of those. Lavinia is also a former model and air hostess. Thank you so much, and a very warm welcome to both of you today. Thank you for joining me on Get Set Go Beyond Sports. Thank you, Sonali. It's my pleasure. Thank you, Neeluji, for joining us all the way. कभी सोचा नहीं था जी हम लोग ट्रैक छोड़ देने के 14 साल बाद दोबारा वर्ल्ड में मेडल जीतेंगे, एशिया में मेडल जीतेंगे और एक नया इतिहास ऐसे इंडियन वुमेन टीम कैप्टनशिप मुझे मिलेगी शादी होने के बाद और बच्चा होने के बाद। यहाँ पे कोई मैं सोच नहीं सकती थी कि वो हाफ पैंट पहन के ट्रैक पे आएगी। जब मैंने 2008 में दोबारा ट्रैक में आने का सोचा तो कुछ मेरे साथ ट्रेजेडी भी थी, कुछ फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं 100 मीटर चल सकूं। डॉक्टर्स ने मुझे बोला बिल्कुल आप अगर चलोगे तो आपका हार्ट फेल भी हो सकता है और 80% ऑर्थोपोरोसिस एंड ऑर्थो में इतना ज़्यादा था कि अगर हम तेजी से किसी पैर को अपने हिट करते तो शायद क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाते, हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती। और मैंने 30 केजी वेट करीब 1 डेढ़ महीने के अंदर ही Wow. साल में ही मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता और उसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि फिनलैंड में थी वहाँ मैंने एज अ ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। तो जहाँ पे लोग कहते थे नहीं शादी के बाद सिर्फ घर संभालना है, चूल्हा चौका या बहुत करना है, नौकरी कर लेना है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में स्पेशली पूर्वांचल और यूपी में अभी बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नीलू जी, आप हमारे साथ यहाँ हैं, हमारे साथ इतनी बातें आप शेयर कर रही हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप जैसी महिलाएं हैं जो हम जैसे लोगों को भी प्रेरित करती हैं। एंड आपने बहुत ही सही कहा कि एक बार शादी के बाद शॉर्ट्स पहनना और ट्रैक पे जाना या कोर्ट पे जाना आसान नहीं है। आई स्टार्ट माई सेशंस विद दिस वन क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज स्पोर्ट्स?
एंड स्पोर्ट्स का ऐसा कौन सा वो एस्पेक्ट है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? 92 में पीटी उषा को जब मैंने देखा कि मैं बहुत छोटी थी उस समय, 6-7 साल की रही होंगी, तो उनको देख कर के लोग बहुत एडमायर करते थे कि कोई लेडी आई, कोई लड़की आई है ऐसे देश के लिए मेडल जीत रही है। उसी समय से मेरे दिमाग में ये फितूर था, आप अगर खिलाड़ी नहीं बनते हो तो एक अच्छे इंसान ज़रूर बनोगे। तो मेरा बच्चों से भी या फिर जो भी मिलता है उसको बस यही इंस्पायर करती हूँ कि अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो, क्योंकि खेल से शरीर भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है। तो इंसान एक अच्छा इंसान बनने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। Right. And Lavinia, what was it that inspired you to choose sports, and what's that aspect of sports that you think is really like a life skill for you? For me, I started actually by taking my son for his training. I was an athlete in school and college, and then, of course, marriage and had my son. And then he took to athletics, and I used to accompany him for all the athletic meets. And to tell the truth, I my legs used to actually shiver when he used to run. I used to get so excited, and I felt like, oh God, I wish I could run. And then I spoke to his coach, and he started training for adults. He had a coaching class for adults, and he told me, "Do you want to join?" So I said, "Okay, fine, I'll give it a try." And I tried, and I'm happy I tried. And I had a great support from my husband and my son, and they all encouraged me. So yeah, it was very tough for me because I had to wake up at 4 in the morning, reach Kandapur at 5:15. So wake up at 4, shower, breakfast, everything, take a car and just drive. And then came my first athletic meet, and all my colleagues said, you have to join because, yeah, I was fastest among all of them, even the men. So my coach said, why don't you join? So I said, okay, fine, I'll give it a try. I was nervous, but yeah, I took part in my first athletic meet and I won the gold. Then came the second. Then I broke the record for the YMCA athletic meet, which was held in Mumbai. And then got qualified for the nationals. There I won 5 gold medals. And then from there I qualified for my first international athletic meet in Colombo. Okay. As women, क्या स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज करना ज्यादा आसान है? क्या पंगा फिल्म की जया बनना आसान है? जब मैं छोटी थी, मैं 1980 और 82 की बात करूँ, तो उस समय स्पोर्ट्स का माहौल था, लेकिन बीच का जो कैरियर आया, एक बहुत गंदी चीज़ हमारे समाज में आई, रेप और इस तरह के बहुत सारे अपराध होने लगे, तो कहीं न कहीं इन सब के डर के मारे पेरेंट्स लड़कियों को खेल में भेजना बंद कर दिए थे। कहीं न कहीं अभी जो माहौल बना है, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी गर्ल्स आगे आएँ। कि कहीं न कहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इस तरह के जो अभियान चले हैं, गर्ल्स के लिए बहुत सारे राइट्स आए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आया है, जो कोचेज़ हैं उनके बिहेवियर में चेंज आया है। पहले क्या, आप कोचेज़ लेके बच्चों को ब्लैकमेल भी करते थे, कहीं न कहीं उनके ऊपर मेंटली हरेसमेंट भी होता था सिलेक्शन को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, उनके माइंड में एक खिला होता था। धीरे-धीरे वो चीज़ कहीं न कहीं सीनियर्स लोगों के जो इंटरफेयर होने लगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब बनने लगे। लोग यहाँ यूपी के 109 वुमेन हेल्पलाइन, ये सब आने से लड़कियाँ थोड़ा-सा एक्टिव हुई और जानने लगी हैं। तो अब जो खेल में आने की बात होती है, क्योंकि खेल ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप थोड़ा-सा मेहनत अच्छा करते हैं तो आपको एक अच्छा करियर मिलता है और एक अच्छी जॉब भी मिलती है। स्पोर्ट्स में अगर आप आते हैं तो आपको वैकेंसी अच्छी मिलती है, स्पेशली महिलाओं की डिमांड भी है कि अच्छी कोई खिलाड़ी आती है हमारे। अगर इंडिया टीम में देखा जाए तो सारे के सारे तो महिलाओं का ही इस समय दबदबा है। डोमिनेंस है जी। बिल्कुल। ओलंपिक में मेडल भी मिले, तो वुमेन्स ने ही जीता। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और बेटियों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो अब मिलने लगी है। तो कहीं न कहीं गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। And Lavinia, what do you think about this? Do you think it's easy? Like you started late, so was it easy for you to take this up as a career, to get into sports? A lot of changes, a lot of changes. First and foremost, hard work, perseverance, and yeah, you have to compromise a lot. Like you miss out on a lot of
celebrations, opportunities, because you have to give that part of your life for your training, and you got to wake up at 4. You have to be very, very strict with your regime, your training regime, your diet, and everything. So yeah, it has been a bit tough, but Yeah, it's fun. and if you It's look at good. it, it's pretty much what we also tell the kids, right? Like when you talk to children who've got into sports, or the seniors who are in sports, all of them say the same thing, that we've had to give up a lot, on these kind of regular activities that kind of happen in households. Yes. And I've always received the reply from all of them saying that when you're so passionate about it, you won't even miss it. Yes. Neeraj, you have also been a former athlete, and you got back on track. तो आपको अपनी ट्रेनिंग में क्या बदलाव लाना पड़ा, या जब आप वापस आए तो आपने क्या चेंजेस देखे तब में और अब में? जब मेरी शादी हुई 95 में, उस समय मैं इंडिया टीम में थी और कैंप लगा हुआ था, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुर ने कहा कि हाफ पैंट पहन के बेटा तुम कैसे दौड़ोगे, अच्छा नहीं लगेगा एक बहू हाफ पैंट पहन के दौड़े। तो वो एक लाइफ का राइट, ब्रेक हुआ। मैंने 14 साल मेरी लाइफ में ब्रेक हुआ। आफ्टर 14 इयर्स आई डिसाइडेड, वो भी इसलिए कि किडनी की प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट किडनी मेरी फेल्योर पे जा चुकी थी। मेरे लिए राइट, बहुत मुश्किल था ये डिसाइड करना कि मैं ट्रैक पे कैसे जाऊँ, क्योंकि 3 साल लगातार एक मिसकैरेज हुआ था, लगातार ब्लीडिंग मेरे बॉडी से, सब कुछ हीमोग्लोबिन 5 पे था। जब मैं ठीक होना शुरू की तो मुझे लगा यार ये लाइफ मैं क्या जी रही हूँ, इतनी सारी दवाइयाँ हैं, चलने में साँस फूल रहा है, चलो एक दिन चलते ट्रैक पे शायद फिट हो लूँ। मैंने शुरुआत फिटनेस के लिए की, लेकिन जब स्टेडियम जाना शुरू किया तो मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स और सब सीनियर मेरे भैया लोग मिले, तो कि क्यों नहीं मास्टर्स में खेलते हो। तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, और हम लोग सिविल सर्विसेज जो डिपार्टमेंट का कंपटीशन होता है, वो भी हर साल होता है। एक टारगेट मिल गया। फिर मैंने जब 30 केजी वेट कम किया तो ऐसे एक दिन बोला कि चलो भैया मेरा 100 मीटर का टाइमिंग देखिए देखिए कितना करते हैं। तो उससे बहुत अच्छी टाइमिंग थी, मतलब इंडिया में जो बेस्ट ऑफ 3 की टाइमिंग मैंने रिजल्ट नेट पे देखा। तो वो टाइमिंग मिलने के बाद तो मुझे लगा कि जैसे लाइफ मेरी उड़ने लगी, पंख लग गए। फिर मैंने नेशनल पहला 2009 में हिसार में खेला, वहाँ 1 गोल्ड 1 सिल्वर। तो मेरे लिए तो सिर्फ पार्टिसिपेशन करने का सपना था, लेकिन राइट। मेडल मिलने शुरू हुए उसी साल जब मैंने मोटिवेशन वर्ल्ड, मोटिवेशन मिलता गया। बहुत ही बड़ा सपना था कि जो लेडी ट्रैक पे चल नहीं सकती थी और वो दौड़ रही है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस स्लो रनिंग, जॉगिंग वॉकिंग, जॉगिंग वॉकिंग, और बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। जैसे कि लवीनिया ने बोला कि हमारा शेड्यूल बहुत अच्छा होता है, हमारा खाना बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा राइट, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारी पूरी, अगर हम स्पोर्ट्स में हैं तो हमारी लाइफस्टाइल बाकी लोगों से बहुत लाइफस्टाइल। अच्छी होती है और बहुत हेल्दी होती है। जी। जो In नींद, fact, sports really does make, and which is why I always keep emphasizing that sports is such a great life skill to have, because sports teaches you everything, right from discipline, right from rigorous training to the ups and the downs. It kind of teaches you to push yourself. It teaches you to compete. It's like a complete package. So I want to talk Yes. about, how we have masters in just so many other sports, and we have people who compete in masters and they win medals for India. Of course, it's always going to be a conversation, controversy, where I would say, where is the recognition for athletes who at this age are bringing it for India? So, Yes. Masters Athlete Championships होते क्या हैं? So masters actually are all for the ex-athletes who have crossed the age of 35 can compete in the masters. So they come under the masters category. Lavinia, I also took up playing a sport just about 2 or 3 years ago, and I aspire to be there, like you all, and hopefully I can make it someday. But Of course you will. yes, so yes, Of course you it's a will. great. Thank you so much. It's a great platform where you see all Right. the ex players, the passion Yes. that they have,
एंड सबकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग है कि कैसे उन्होंने स्पोर्ट्स से अपनी जिंदगी को चेंज किया है, कैसे स्पोर्ट्स ने उनको एक एक मुकाम पर पहुंचाया है. Right. टेल मी समथिंग अगेन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. क्या आपको लगता है, डू यू थिंक विमेन आर रेडी फॉर स्पोर्ट्स? या इफ आई कैन आस्क यू, इज स्पोर्ट्स रेडी फॉर विमेन? क्या हमारा कल्चर रेडी है? Women are ready for sports now. In this day and age, yes, women are ready for sports because times have changed, mindsets have changed. Okay, so there's more women power, there's more encouragement for women, and yeah, like when I've been invited for quite a few shows, I want to encourage women. Don't give up. Just because marriage and kids. No, that's not. Life has not ended there. And if you have the passion, you have the willpower, go for it. Nothing can stop you. And if you can compromise, and if you have great support from your family, just go all out. Yes. बहुत इंस्पायरिंग है. 50-50 है. स्पोर्ट्स भी वुमेन का वेट कर रहा है, वुमेन भी स्पोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक गैप है जो गैप अभी भर नहीं रहा है. वो शायद लोगों का माइंड सेट है या हमारी पुरानी परंपराएं हैं, घर के रीति रिवाज हैं, लोगों की सोच है, वो अभी बीच में दरार आ रही. लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं एक्टिव हुई है. जब हम लोग ट्रैक पे जाते हैं अच्छा लगता है. जब 102 साल की कोई महिला हमारे वहाँ अभी राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला मान कौर जी को. कितनी ब्रेव लेडी है कि 102 104 साल में वो अपने देश के लिए मेडल जीत रही है. तो एक लेडी वो भी है. हम अपने आप को किसी एक आइकन को ही लेकर के माइंड सेट चलते हैं कि वो कर सकती तो हम क्यों नहीं. तो हम फिट रहेंगे तो उसका फायदा कितना है कि हमारी फैमिली फिट रहेगी. हम सबका ख्याल रख सकते हैं. अपने काम को अपने शौक करते करते हम सबको देख सकते हैं. तो हमको फिट रखना हमारी फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारा ध्यान रख रही है हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए. अगर ये सोच आ जाए तो फिर महिलाएं खेल के पीछे भागेंगी, खेल महिलाओं के पीछे नहीं. बहुत ही अच्छा आपने बोला नीलू जी कि खेल महिलाओं के पीछे भागेगा, महिलाओं को खेल के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोग एनकरेज करेंगे, फैमिलीज एनकरेज करेंगी. सो आई वांट टू आस्क you, Lavinia, that what has been your experience on the tracks? What is the infrastructure that you see around the world and in India? Because when we are talking about making changes in terms of our culture, there's also a lot of infrastructural changes that are required. What do you have to say about your experiences on the track? Yeah, very much. There has to be a better infrastructure. Beats have to be little more better organized. There is sometimes, this misorganizations, I would say, but better organized, and the facilities that they offer at the grounds, yeah, that has to be much better. And otherwise it's all good. Yeah. Right. So, नीलू जी, I'll ask you this question. नीलू जी, आप प्रेसिडेंट हैं हॉकी, एथलेटिक्स, रोइंग एसोसिएशंस की वाराणसी में. तो क्या आपको लगता है कि हम स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे आप अब एसोसिएशंस के हिसाब से बोलेंगे, या इफ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ इट, या आपको अभी भी लगता है कि हम पीछे हैं, बहुत कुछ है जो हमें अभी भी बदलने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? या ऑफ कोर्स हम कल्चर की बात करते हैं, बट कल्चर की शिफ्ट के बाद आगे क्या, हमें क्या डेवलपमेंट में क्या जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए खेल तो शुरुआत होता है जब वो ग्रामीण स्तर से. कहीं जो भी खिलाड़ी आते हैं वो मैक्सिमम हमारे विलेजेस के होते हैं. तो हमको एटलीस्ट अभी जो गवर्नमेंट यूपी की बात करती हूँ मैं, यूपी में हर गांव में एक खेल मैदान बनाने जा रही है गवर्नमेंट. तो थोड़ा सा चेंज हुआ है. पहले होता था एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होता था, बच्चे उसी में सारा लोड होता था. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे स्टेट में कमेटी बनाई हुई है खेल प्रोत्साहन समिति. हर डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ रहे हैं. और जितने भी ये पैसे आते हैं, चाहे कुछ लाइसेंस वगैरह बनाते हैं तो कुछ पैसे लोग अलग से गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम चलेंगी तो उन्होंने एक फंड रेज किया हुआ है. वो फंड हमारे खेल प्रोत्साहन समिति से जाएगा और उन बच्चों को हेल्प मिलेगा. जो मेन जब हम लोग की डिमांड थी कि बच्चे जब खेल के मेडल लाते हैं उनको तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, या
सब कुछ मिलता है, लेकिन जब बेस होती है, बच्चा मैदान में आता है, उसके पास फटे जूते होते हैं या ट्रैक सूट नहीं होता है, कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं कि जिससे वो ग्रो कर सके, उसको राइट, सो प्रॉपर आई पता विल नहीं। आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि क्या हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं? क्या हमारी इनिशिएटिव्स जो हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं, या यू नो पीपल लाइक मी, आप हैं, लवीनिया जी है, वी आर ऑल स्पीकिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। हम जब भी मौका मिलता है कहीं पर भी, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं कि प्लीज आप स्पोर्ट्स खेलिए, आप देखिए क्या है। तो और क्या कर सकते हैं? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू ऐड? क्या हम, जैसे आप भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ एक थोड़ा सा गैप है, तो हम और क्या करके इस गैप को फिल कर सकते हैं? मेरी नज़र में तो जैसे बच्चे जब शुरुआत करते हैं तो बहुत गरीब घर के बच्चे खेलने में आते हैं। कुछ ऐसे गेम है जिसमें बहुत अच्छे घर के आते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जिससे कि वो एटलीस्ट वो बेसिक डाइट या बेसिक चीज़ें, चाहे उनके किट वगैरह हैं, तो वो एक जब भी रजिस्ट्रेशन हो तो उनकी इनकम के हिसाब से, जैसे गरीबी रेखा के जो नीचे बच्चे हैं बेस, उनके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उससे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। In fact, I would be very happy and use this platform today to say that at Go Beyond Sports, we are building something like very similar to be able to help talent grow. And it is my endeavor to be able to support and be able to do whatever I can for the development of sports. The gap is basically better infrastructure, better facilities for the kids, for us. Like I've gone to many of the athletic grounds, and the cleanliness, the toilets, really bad. Sorry to say that, but really Yes. bad. I think there has I to be a echo what you're better saying, facilities. Lavinia. You know? I totally So echo what you're saying. Sanitization, cleanliness really yeah, are, you know, things that are yes, because we are neglectable there for because so this many is not. hours, on the ground. Yes, yes, and I've heard Yeah. this from so many players when they say that, you know, even basic facilities, you know, washroom facilities, bathroom facilities, even these are not That's right. up to the mark. Yes, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि आप लग्जरी मांग रहे हैं. This is just very basic that exactly. anybody can ask Yeah, the for. basic cleanliness. Yes, true, true. Yes, सही बात। और एक प्रॉब्लम आती है, yes. मास्टर्स की बात हो रही है, तो मास्टर्स में कुछ प्लेयर्स तो जैसे इनके पास पैसा है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आती है मास्टर्स के जो रूल्स हैं, वो बोलते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट से आप हेल्प लेके खेलने जाओ। तो थोड़ा-सा लगता है कि हम गोल्ड जीत के आ रहे हैं और हमारा स्टेट कुछ नहीं कर रहा है। जो ब्रॉन्ज़ भी खेल रहे हैं या सिर्फ़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका स्टेट उनको पूरा फंड दे रहा है आने-जाने का और सारी सुविधाएँ। तो थोड़ा-सा वहीं पे मोरल डाउन भी हो जाता है। और अभी प्लेयर्स कमर्शियल होते जा रहे हैं। हम लोग Right. के जो माइंड में हम लोग देश के लिए खेलना चाहते हैं या चाहते हैं अपने इंडिया के लिए मेडल आए, तो इस तरह का विचार दिमाग में रहता है। लेकिन जब जिनका स्टेट कुछ फंड देता है, तो वो सिर्फ़ कमर्शियल आते हैं। वो 1 मेडल जीतने के बाद मेरे 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, तो दैट इज़ वो बहुत ही बुरा लगता है कि Right. कि आप किस सोच के साथ खेलने आ रहे हो। तो खेल में ये Right. सोच भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम खेलने आ रहे Right. हैं, ठीक है, हम खेल को गवर्नमेंट जितना कोचिंग क्लीन देगी। रख सके. Right. Uh, and I'm going to ask you this question क्योंकि हमारी परिस्थिति इस तरह की है. जब हमने बात की थी पहले, आप भी बता रहे थे कि because of the virus, because of the COVID-19 situation, we are all locked down. How have you managed to stay fit? It has been tough, but body clock. I'm still waking up at 4. So I wake up at 4 and then I go for a jog. I go for a jog, come home, and I just do all my freehand exercises, strength training, and a little bit of endurance. Then I also check out videos on YouTube. I have a lot of amazing coaches who are coaching you online. And right now I'm coaching with Irfan sir. So he's also amazing, and every day is a different setup that he gives us to do. So yeah, I am missing my gym very much because my weight training. I'm missing a lot of weight training.
But yeah, I am managing, and we have to manage. We have to be at least there, not fully there, but at least there. And hopefully, yeah, my training starts soon. Looking forward to it. और सुबह से रात तक बहुत एक्टिव, कि मदर इन लॉ को कैंसर, इस कैंसर सर्वाइवर, तो उनका अलग से care, और हस्बैंड बेटा सब लोग घर में थे, तो और घर में मेरा बहुत बड़ा कोई स्टाफ नहीं, तो सुबह से झाड़ू पोछा और खाना बर्तन कपड़ा ये सब तो करते थे, लेकिन दिन में 2 टाइम वर्कआउट, सुबह मेरा योगा होता था, और Right. शाम को पूरा फुल लॉन है मेरा, तो थोड़ा कॉलोनी की रोड भी थी, तो हल्की जॉगिंग एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो जाता था, लेकिन बहुत ट्रैक को बहुत मिस किया, और अभी भी हमारे यूपी गवर्नमेंट ने ट्रैक नहीं खोला हुआ है, अभी भी बहुत Mm. मिस करती हूँ, बस मन करता है कभी कभी हर्राटा मार के उड़ने का, लेकिन वेट कर रहे हैं। एक बहुत ही Right. लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि ट्रैक, जी. घर और कोविड को मैनेज करना बहुत Right. अच्छे से It's हुआ। what. Yes. Yes. And I think uh, I must say कि हम सब ने बहुत अपनी तरफ से हर एक इंसान ने काफी कोशिश की होगी, बिकॉज ये बहुत नया है हम सब के लिए. We none of us were prepared for this as human beings. So I want to ask this one question, and I'm going to start with you, Lavinia. Say you've been a model, you've also been an air hostess. How difficult is it for you to sort of bring that respect for yourself as an individual, saying, I am Lavinia as I am? And, you do not have to always be addressed as somebody's wife. And I would probably also ask Neetu ji this, कि कामयाबी के बाद भी क्या लोग आज भी बीवी, माँ, बहू के रूप में ही देखते हैं, या हमें फिर हमारी एक वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल पाती है? Now, yes, it's Lavinia Hansraj, Chetan's wife, and Ethan Hansraj's mother, Lavinia Hansraj, who's an athlete. Yeah, so it makes it, there's a lot of pride, because when you hear, like, that, okay, fine, I am addressed by my name, you earned it, and all your hard work and stuff like that. Yeah, it is a big deal. So it feels great to be recognized as Lavinia Hansraj. Yes. And especially when you Google and you see Lavinia Hansraj, yeah, that really gives you a high. Yes, yes, I'm very, very sure, because it's a moment of pride to know that you're recognized. नीलू जी, आपको क्या लगता है? जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो ठीक है, मैं आनंद दुबे की वाइफ हूँ, लेकिन नॉर्मली मेरे हस्बैंड खुद ही बोल देते हैं कि मैं नीलू मिश्रा का हस्बैंड आनंद दुबे हूँ। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है, लेकिन एक Right. अच्छा लगता है कि भी एसोसिएशन के लोग मुझे जानते हैं, और इंट्रोडक्शन के रूप में बच्चे भी, मेरा बेटा जैसे मैंने बताया 23 साल का है, तो वो जब खड़ा Right. होता है एज ए मदर, एक प्राउड मोमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है। जी. लेकिन कभी कभी लगता है कि प्रॉब्लम आती है कि पब्लिक मुझे ज्यादा रिकॉग्नाइज करती है, थोड़ा सा लगता है कि हस्बैंड को But कहीं tell me, फील क्या हम as women, have we still not been culturally brought up to have our own identity? Like even Neelu ji says that we within ourselves are so unable to, take or receive all of this adulation and the recognition, that it actually takes you time to kind of even get used to it. Yes, it does. It does. It does. But eventually you do. Eventually you do. Yes. So it's good. Yes. I'm going to take a few questions that we have. Ayushi wants to know that what more can the government do to encourage women to play sports and participate? I think the government should advertise more. Okay, make it more public. Put more advertisements. Encourage women, and yeah, that's how you can encourage women, by advertising and spreading the word, basically. And I'm sure, yeah, you'll get a lot of women coming up. A lot of women don't know about masters, actually, Yes. because when I Yes. used to enter, yeah, they used to question me, like, how you started running, and how. So I keep telling them, like, you can too, give it a Yes. try. And yeah, because masters is open to all.
Yes, and Neeluji, I have a question for you from Amay. Amay wants to know, ma'am, what according to you is the future of athletics in India and especially women's participation in it? बहुत अच्छा है। हिमा दास और हमारे दूती चंद, दो ऐसे एथलीट हमारे सामने जिनको शायद हर लड़की चाहती, जीना चाहती, उनकी जैसा बनना चाहती है। तो Right, अभी हमारे अपनी इंडिया टीम की जो एथलेटिक्स टीम है, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स की, बहुत अच्छी है। और अब जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो एक कमी मुझे दिखती है कि गर्ल्स हॉस्टल हर रीजन में या मंडल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे बने हैं। लड़कियों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो कहीं जाकर रहे। गरीब माँ बाप होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को रूम लेके अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजे प्रैक्टिस के लिए। तो गवर्नमेंट को right, अपने स्पोर्ट्स साई के हॉस्टल्स आ रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी आ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तुलना में बहुत कम है। तो गर्ल्स right, हॉस्टल्स बनने चाहिए। और खेलो इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली गर्ल्स या बॉयज दोनों के लिए। अगर आपके अंदर right. टैलेंट है, खेलो इंडिया में अडॉप्ट करते हैं और अच्छा खासा 50,000 पर एथलीट स्पॉन्सर करती है हमारी गवर्नमेंट। तो यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मास्टर्स के लिए अभी ये चीजें नहीं है, उसकी So, कई नीलू जी, चीजें हैं। आपको नहीं लगता कि अब खेलो इंडिया को मास्टर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए? चाहे अब बात शायद टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थोड़ा सा मास्टर्स की तरफ भी एक बिल्कुल। एक मोड़ आए. Yes, जब they should. मानकौर को सम्मान मिला, तो मेरे प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला, तो मुझे वहीं पे प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं। तो इस गेम को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ इंडिया में दो कुछ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ चार चार एसोसिएशन है। ये गवर्नमेंट से बात करें तो बोलते हैं आप चारों एक हो जाओ, देन आई विल रिकॉग्नाइज। तो Yes, हम लोग मानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड और एशिया चैंपियनशिप है हमारा, जैसे माफी है, तो माफी से जुड़ के खेल रहे, लेकिन अभी फैसिलिटी के नाम पे माफी सिर्फ कॉम्पिटिशन्स कराता है और हमको एक प्लेटफॉर्म देता है। Right. अगर इसको गवर्नमेंट खेलो इंडिया में ले लेता है, तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि जब हम 30 साल के बाद स्पोर्ट्स छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन होता है, हमारी फिजिकल फिटनेस खत्म होती है। क्योंकि एक जो पहचान थी, वो पहचान अब एक नॉर्मल इंसान के रूप में होने लगी है। हमको एक सेलिब्रिटी मानते थे, अभी वो सेलिब्रिटी खत्म हो गया है। तो मास्टर्स में आ जाने से सबसे पहले एक हमारी पहचान बनी रहेगी, हमारी right, फिटनेस बनी रहेगी, अपने नए एथलीट्स को एक आइकन के रूप में एक प्लेयर मिलेगा जो उनको इनकरेज करेगा। और सबसे right, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि 35-40 के बाद बीपी, शुगर और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम जो होती है, हमारे दवाइयों का right. खर्चा कम होगा। जो गवर्नमेंट दवा पे खर्चा करती है, अगर उस पैसे को हमारे मास्टर्स को फिट करने में लगा दे, हमारे सीनियर सिटीजन के ऊपर फिटनेस पे लगाए, तो मेरे ख्याल से दवा का खर्चा और दवा के ऊपर जो बजट है वो कम किया जा सकता है। Right, very well said, Neelu ji. And in fact, Anil ji ne bhi, commentary here, and he says, "Hats off to you both for your outstanding achievements. Because you're really a true model for all the Thank sports you, women in Anil. particular." And Thank you. yes, I echo what he says because having you on the platform today, we have been able to touch upon so many subjects, and we understand that there is a lot that has already been done for sports. So yes, I believe that everybody is doing things in their way, and it has been great chatting with all of you. Suchitra Shetty, compare it with all of you, has been wanting to say a thank you to all of you and saying, very well said, because she's been hearing these conversation and agrees to all of this, that we are also saying that it really is the need of the hour. So thank you so much for being a part of the show. And thank you everyone for watching Majrika Asteria Warrior Women today on Get Set Go Beyond Sports with me, Sonali Gupta. Please continue to like, subscribe, and support us across various platforms. Thank you, and thank you, Neeluji, and thank you, Lavinia, for being a part of this. Thank you, Much. Sonali. It was great. It was a great interview. Thank you. जय Jai Hind.